Yes. So we should learn always. Keep learning, I would say, because in a corporate, every time we see some new amendments or changes or advancement, so we should always try to assimilate those, or I would say try to mold as per the requirement of this industry. Then only you can sustain, otherwise it will difficult for you or for all of us to sustain in this industry, because industry is again rapidly changing. uh, the new technologies keep coming in the financial industry, so that's what we never know what happened. So yesterday I got a bad news that the Bitter.com, so they have announced the layoff. Layoff, it means they have fired more than 4,000 people in a day. So it's a it's a if something happened like this, then we really scared, because career, financial planning, other responsibilities, everything will be messed. So that's what even I insist you guys, don't be depend on only one process. Try to learn other processes as well, right? If you don't do this, then the time will come in your life and it will teach you how you can do it. And also in that case, if time will do this, then it will feel very difficult in that situation. So that's what, before such a time come in your life, you should proactive, you should always try to enhance your knowledge, skills, process expertise, and other personal development skills and all. Then only you can see the success in your life. Corporate. Yeah, so everything that I have mentioned there, so now it's your time. If you want you can, if you don't want you don't. Again, I'll just recap this rule. Whenever you see the question on what is corporate action rule, so you can say trade should be trade should be placed or traded the securities before the ex date, right? Trade or traded securities or trade should be placed before the ex date. Ex date would be any date, and it should be settled on or before the record date. On or before the record date. So only in that case that the holding will be entitled to get the benefit of corporate action. Okay. Now I hope now you remember this what we had discussed in last session. Yes, no, maybe. नो, वेट अ मिनट. ओके, मैं तुम्हें बताता हूँ, चलो हिंदी में ले लेते सेशन, इंग्लिश को मारो गोली. कॉर्पोरेट एक्शन का बेनिफिट मिलने के लिए, किसी भी चीज का बेनिफिट मिलने के लिए कोई रूल होगा? होगा या नहीं होगा? होगा. तो रूल क्या होगा, ये भी तो डिफाइन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर रूल की बात हम करते हैं, तो रूल डिफाइंड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना. यही याद रखो. अभी रूल अगर डिफाइंड होना चाहिए तो फिर है क्या? ये रूल बोल रहा है कि जो अगर तुम्हें कॉर्पोरेट एक्शन का बेनिफिट चाहिए तो तुम्हारा ट्रेड एक्स डेट के पहले होना चाहिए. समझ में आया? एक्स डेट मतलब ये है, कोई भी डेट है एक्स डेट, जैसे x-1 कहो उसे,
इस डेट पे होना चाहिए, फिर एक्स डेट के पहले होना चाहिए। अगर एक्स डेट आज है तो कल तुमने ट्रेड लेना चाहिए। मतलब ट्रेड लेना चाहिए मतलब क्या, तुम्हारे पास वो शेयर्स चाहिए, एंड वो शेयर्स सेटल भी होने चाहिए यहां पे आप रिकॉर्ड डेट पे आने के बाद। रिकॉर्ड नहीं, सुनो, उसको कंफ्यूज मत करो। ये एक्स डेट है तुम्हारी, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं एक्स डेट के पहले तुम्हारे पास सिक्योरिटी होनी चाहिए। एक्स डेट के पहले तुम्हारे पास सिक्योरिटी होनी चाहिए। रिकॉर्ड डेट के पहले और रिकॉर्ड डेट तक, ऑन और बिफोर का मतलब क्या है? रिकॉर्ड डेट से पहले या फिर रिकॉर्ड डेट तक वो सेटल्ड होनी चाहिए, तब जाके तुम्हें कॉर्पोरेट एक्शन का बेनिफिट मिले। मैंने वो भी एक एक्सेप्शन बता दिया था कि कई बार मार्केट के टाइप्स है, रिकॉर्ड डेट मार्केट टाइप्स है और एक्स डेट मार्केट टाइप्स है। एक्स डेट मार्केट का टाइप है कि एक्स डेट को अगर तुम्हारे अकाउंट में शेयर्स है तो तुम्हें बेनिफिट मिल जाएगा। रिकॉर्ड डेट बेस का होता है, मतलब कि रिकॉर्ड डेट पे अगर सिक्योरिटीज अकाउंट में है तो तुम्हें बेनिफिट मिल जाएगा। समझ गए नहीं समझ गए? इसे छोड़ो, वो छोड़ो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। वो इंपॉर्टेंट, अभी मैं इंपॉर्टेंट चीजें रिपीट कर देता हूं। तुम्हें अगर बेनिफिट चाहिए, तुम्हें अगर बेनिफिट चाहिए तो ट्रेड डेट को ही तुम एक्स डेट को, एक्स डेट के पहले तुम्हारे पास सिक्योरिटी चाहिए, खत्म। एंड वो सेटल होनी चाहिए रिकॉर्ड रिकॉर्ड डेट पे, जो भी रिकॉर्ड डेट होगी कंपनी की। नहीं समझा अभी भी? हाँ, हाँ। हम्म। हाँ, देखो कई इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द रूल ऑफ कॉर्पोरेट एक्शन, तो इतना कहो कि ट्रेड शुड बी प्लेस्ड बिफोर द एक्स डेट एंड शुड बी सेटल्ड ऑन और बिफोर द रिकॉर्डेड ओनली इन द, इफ यू फॉलो दिस देन यू विल बी एलिजिबल फॉर अ बेनिफिट ऑफ कॉर्पोरेट एक्शन, खत्म। अब क्या मैंने कहा ये रिपीट कर दो। हम्म। सिंपल कहो, ट्रेड ट्रेड शुड बी ट्रेड शुड बी बिफोर द एक्स डेट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तब मजा आएगा। Entitlement date, also called entitlement date. If this trade happened here, still, तो हम क्या कर सकते हैं, एक ड्रॉ कर लेता हूँ। अरे यार,
नहीं आता ड्रॉप डाउन कभी कभी, वो छोड़ दो। मैं ये मुझे रूल बता, ये भी करना था, इंटरप्रेट करना था अच्छे से। ओके, ठीक है। मैं यही कहूँगा कि ये अगर एक्स डेट पे ट्रेड होता है तब भी बेनिफिट मिलेगा, बट वो डिपेंड रहेगा मार्केट पे, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए। तुम्हारे हिसाब से जो क्वेश्चंस बनेगा, ये ही दिख रहा है मुझे यहाँ पे, कॉर्पोरेट एक्शन का जो रूल है वो आप पूछे जाएगा। उसको इतना ही कहो कि सिक्योरिटी शुड बी ट्रेडेड बिफोर द एक्स डेट, security shares should be TRADED traded BEFORE before the X date and should be settled on or before the record date. Then only then only well eligible for CA benefit. आप लिंक कर सकते हो तो अच्छा है। क्या हो गया? अरे यार, क्या दिक्कत है ज़िंदगी में। ठीक है, अब समझ में आया ये रूल? शेयर शुड बी ट्रेडेड बिफोर द एक्स डेट and should be settled on or before the record date, then only you will be eligible for a CA benefits. अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये सिंपल सा रूल बनाया है हमने। अकाउंटिंग डेट कहो इसे या फिर बुक क्लोजिंग डेट कहो, सभी डेट एक ही है। ये देखो, अब इतना मैंने सिंपल बना दिया। ये दो रूल है। If you can see the here quantity 100 trade and settled as per the below rule, that means the particular trade is entitled for CA real. एंड इन सेकंड, अगर लग रहा है कि हमें, अगर हम सेकंड का एग्जांपल अगर देते हैं, समझो कि ये हमारा था फर्स्ट केस जहाँ पर हमने ऐसे किया। अगर सेकंड केस में अगर हम यही चीज़ अगर उल्टी करते हैं, जैसे कि मानो यही क्वांटिटी हमने क्या कर दिया ना, कि जैसे सेकंड एग्जांपल ले लिया, इन्फोसिस का ले लिया, हमारी जो क्वांटिटी बन रही है एक्स डेट पे तो हमने कुछ लिया ही नहीं। ये रूल तुम्हारा 80% काम करता है, ठीक है? समझ में नहीं आएगा, इतने अगर जल्दी आया तो सब लोग कॉर्पोरेट एक्शन के इंटर में पास होके निकल जाते हैं। तो तुमने क्या कर दिया अब सेकंड एग्जांपल में, इन केस ऑन एक्स डेट एंड सेटल्ड ऑन RD+1, मतलब ये हुआ कि तुमने इस एग्जांपल में यहाँ पे कुछ शेयर्स ले लिए इन्फोसिस के, एंड ये सेटल भी जाके यहाँ पे हो गए ट्रेडेड एंड सेटल यहाँ पे। तो इट मीन्स ये इनवैलिड फेल हुए, फेल हुआ ना ट्रेड। नहीं नहीं, अगर कॉर्प, हाँ, इनवैलिड ही होगा, रूल के हिसाब से गया तो तुम उसको क्या कहोगी? जैसे सेकंड एग्जांपल, मैंने पहले एग्जांपल इसके लिए लिखा, ये ऐसे ट्रेड होना चाहिए ये, and अगर ऐसे ट्रेड नहीं हो रहा है मानो, तो वो फेल हो जाएगा ना। तो मैंने दो उदाहरण तुम्हें अभी इसलिए समझा दिया यहाँ पर ताकि तुम्हें वो चीज़ अच्छे से समझे।
तो हमने दूसरे एग्जाम्पल को यहाँ पर ट्रेस किया हुआ है ऐसे कि भी देखो हमने ऐसे ट्रे ये कर दिया था, बट दिक्कत ये हो गई कि वो ट्रेड अगर यहाँ हो गया तो ये रूल फॉलो नहीं हुआ, तो इसलिए वो फेल हो गया। तो मैं यहाँ पे एक कमेंट डाल देता हूँ। So it will treat as a invalid fail. अब इनवैलिड फेल हो रहा है तो फिर एक बात को ये भी समझना चाहिए हमें कि भाई उसको बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? नहीं मिलेगा ना। तो यही यही लॉजिक है उसका कि अगर उसको वैसे हो जाता है तो उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा, सिंपल याद रखो। हाँ, चलो, तो ये हुआ कॉर्पोरेट एक्शन का रूल, हमने कई बार डिस्कस किया, मुझे लगा रिकैप करना चाहिए क्योंकि मुझे इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए थे, कई सारे सिनेरियोज दिए गए थे। मुझे भी अलग अलग सिनेरियोज बना के दिए गए थे। कल ही मैंने बोला कि मेरा इंटरव्यू था जहाँ पर, वहाँ पे मुझे अलग अलग तरह से सवाल पूछे गए कि व्हाट इज़ द रूल ऑफ कॉर्पोरेट एक्शन। ऐसे पूछा गया कि अगर हम, ये एग्जांपल दिया गया कि हम ये सिक्योरिटी अगर एक्स डेट पे ट्रेड करते, वो अगर सेटलमेंट डेट पे सेटल नहीं हो रही है तो फिर उसको क्या कहा जाएगा, वो कैसे ट्रीट हो जाएगा, वो सब चीज़ें मुझे पूछी गई। तो इसलिए सोचे कि मैं एक बार और रिकैप कर लेता हूँ आपको। मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ तो मुझे हाँ पता हो जाता है, बट अगर आप फ्रेशर हो तो दिक्कतें आती है, बहुत ज़्यादा आती है। बट मैंने इतना तो डीप में कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा एक फ्रेशर से, बट पता नहीं है ना, तो हमें इक्विप रहना चाहिए हमेशा, एंड हमें वो चीज़ें भी आनी चाहिए। तो अब हम, ये तो हुआ हमारा रूल का, तो पहले से ही डिस्कस था, बट मैंने और थोड़ा सा समय ले लिया ताकि जब मुझे लगता है कि जब वो चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा डिस्कस होनी चाहिए तो मैं ले लेता हूँ। तो अब मैं ये मैंने तुम्हें नोट्स में दिया हुआ है पूरा, है ना, पूरा दिया हुआ है। बट मैं एक शॉर्ट, जैसे मैंने बोला था कि पहले हमने कैश डिविडेंड के बारे में डिस्कस किया था, तुम्हें क्वेश्चंस क्या पूछेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैश डिविडेंड एंड ड्रीप। Both are from mandatory with choice corporate action types, but in the DREAP we offer investor to reinvest the dividend in the same stock। समझे? हाँ। हम क्या कर रहे हैं कि डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट का अर्थ क्या है, डिविडेंड तो दे रहे हैं बट अगर उसको हम ये भी कह रहे हैं कि तुम्हें अगर इन्वेस्ट करना है तो कर लो। समझ में नहीं आया होगा? कौन सी नहीं, हजारों कंपनियां हो जो, नहीं 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 भाई, ये मत सुनो, ये मत, तुम एक प्रोसेसर हो, तुम्हें कुछ लेना देना है मुझसे से। बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, हम एक प्रोसेसर है। कितनी सारी मैं कंपनियां तुम्हें दिखा देता हूँ, यूएस के मार्केट की ड्रिप लेकर आती है, डिविडेंड भी साथ में देती है और स्टॉक भी साथ में देती है, बट ये बोलती है कि मैं जो डिविडेंड दे रही हूँ हम उसको डिविडेंड के बदले तुम्हें स्टॉक देंगे, स्टॉक डिविडेंड की तरह काम करता है। ये जो कॉम्बो है ना, ड्रिप जो कॉम्बो है ना, ड्रिप, वो जैसे कि वो तुम्हें डिविडेंड दे रहा है एंड फिर बोल रहा है कि इन्वेस्ट करो उसमें। हाँ, हाँ, अरे सुनो 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 सुनो, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है ना, तुम्हें मांगने की जरूरत है, ठीक है? पहली बात ये मैं क्लियर करता हूँ, एक तुम प्रोसेसर हो, प्रोसेस करने के लिए सिस्टम पे बैठे हो। अगर तुम्हारे पास इन्वेस्टर का डेटा नहीं है, किसको डिविडेंड कैश चाहिए या किसको फिर स्टॉक चाहिए, तो कैसे प्रोसेस करोगे? 。 . 。 । 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . . 。 . . 。 . . 。 . . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。
हाँ, अगर तुम्हें वो इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से सोचना है तो बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं वहां पे एक्चुअली ब्रोकर के साइट पे जाके वोटिंग करते हैं कि मुझे क्या चाहिए। मैं खुद करता हूँ जब भी मैं कुछ कॉर्पोरेट एक्शन देखता हूँ तो मैं खुद देखता हूँ, मैं खुद करता हूँ। तो दोनों का प्रोसेसिंग पैटर्न सेम रहेगा। इसके साथ एक ही डिफरेंस बनेगा, जो हम वही डिविडेंड री इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, तो इतना ही बोल दीजिए, बस खत्म। अगर कोई पूछ रहा है सवाल कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैश डिविडेंड एंड ड्रीप, कैश डिविडेंड वेयर प्योरली वी आर ऑफरिंग कैश डिविडेंड टू द इन्वेस्टर्स, एंड विद द ड्रीप we are offering the reinvestment option with the dividend. Let's say there are a few investors who want to invest in the same stock, so they can, so right, so instead cash, then we'll process the stock payment to them. That's it. अब समझ में आया नहीं आया? वाई वी आर नॉट सी, ये ऐसे कोई नहीं पूछेगा वाई का मतलब क्या। अभी अगर डिविडेंड आ रहा है तो क्यों पूछेगा अभी? वाई वगैरह के सवाल नहीं आएंगे। वाई क्यों आएंगे? अगर तुमने कुछ गलत बोला तो आएंगे, ठीक है। नॉर्मली अगर कंपनी ने तुम्हें पैसा दिया है तो वाई पूछ के क्यों अपना पोपट करना है अभी? मैं कंपनी हूं, मैंने डिविडेंड दिया है, तुमको प्रोसेस करना है, तो वाई बोल के क्यों आएगा उसमें सवाल? दे ही रहे, तो उसके ऊपर हम बोल रहे हैं कि अगर तुम्हें हमारे कैश की जगह अगर स्टॉक चाहिए क्या। हाँ, तो मैं अभी दो दो लाइन लिख देता हूँ इन सब की, तो तुम्हें शायद वो थोड़ा सा और इजी लगने लगे। मैं चाहता हूँ कि एक लैंग्वेज तुम्हारे पास रहे जब भी कोई सवाल पूछे तो, एंड फिर ये ख़त्म हो जाएगा पोर्शन, कि हमें कुछ भी बाद में इसके ऊपर बहस करने की ज़रूरत नहीं बनेगी। ठीक है, मैं लिख के भी देता हूँ, तो enjoy it. Cash dividend means अरे ये क्या दिक्कत है? When company earn profit, then announce cash benefits as a in announce cash benefit in form of dividend, so that we process in a default currency, or maybe in a different currency, in a different मेरे अब समझ में आया? When company earn profit, then they announce cash benefits in form of dividend, so that we process in default or maybe in a different currency. डिफॉल्ट करेंसी हो सकता है, एग्जाम्पल के लिए सी बिलो एग्जाम्पल्स। पी जीबीपी, हाँ जीबीपी हुआ ना पूरा फुल फॉर्म। वैसे अपना आईएनआर कैसे है वैसा जीबीपी यू आर, 3 डिजिट का है वो करेंसी, करेंसी का जो, हाँ। तो ये हुआ। तो ये अगर तुम्हें चाहिए देन मैं तुम्हें व्हाट भेज दूंगा, वो चीज़ भी व्हाट्सएप पे ये पूरा डाल दूंगा। ड्रीप में क्या होता है? इट्स इट्स कंपनी ऑफर
choice to the investors to reinvest the dividend in the same company stocks. So as a processor, we process dividend as well as stock also if investor confirm. आप समझा? नहीं समझा? बाउंस जाएगा, बहुत ज्यादा बाउंस जाएगा. कंपनी ऑफर, अच्छा ऑफर, choice to the investor to reinvest the dividend in same company stocks, right? So a processor, from processing point of view, so processing front, we process cash dividend as well as stock also if investor confirmed. ठीक है? Company offer cash as well as stock to the investors. We process as per the investors confirm the payout options. Company offers cash as well as stock to the investors. So we process CA as per the investor confirmation on the payout option like cash stock. अब ये तुम्हारा प्रोसेसिंग हुआ. अभी इसके आगे अभी ये की चीजें है, ये तुम्हें पढ़ना है. जैसे कि डिफॉल्ट करेंसी मैंने लिखी है, स्टॉक ऑप्शन लिखा है, कैश डिविडेंड, जो की डिटेल्स वगैरह होते हैं वो लिखे हैं, एक्सपिरेशन डेट, एंटाइटलमेंट डेट. एक्सपिरेशन डेट ये होता है कि ये ऑफर होता है ना एक्चुअली, करेक्ट? चॉइस दे रहे तो आज से लेकर आने वाले 15 दिनों में आप लोग बताओ कि आपको क्या चाहिए. जिस दिन ये ऑफर एक्सपायर होती है उसको एक्सपिरेशन डेट कहा जाता है. ठीक है? फिर एंटाइटलमेंट डेट आती है जहां पर हम कैलकुलेट कर रहा है बंदा कि कितने लोगों ने स्टॉक मांगा है, कितने लोगों ने कैश मांगा है. एंड फिर उसका इवेंट बिल्ड होता है एंड फिर उसमें जाके इवेंट प्रोसेस होता है. ये जो तीनों इवेंट में जो तुम्हें अभी शेयर होल्डर के पास से ओपिनियन चाहिए कि उनको क्या चाहिए, उसके लिए तुम्हें कम्युनिकेशन भेजोगी, है ना, मैसेज भेजोगी ना उनको कि हम ये देने वाले हैं. तो ये होता है MT565. हाँ, ऐसे ही बोलना है. मैसेज, EMT का मतलब है मैसेज टाइप. हाँ, अरे सब पढ़ती है, कोई दिक्कत नहीं. MT565 represent the choice is available to the account owner. मीन्स जिनके पास वो है उसको क्या क्या चॉइस मिलने वाली है उसका वो डेटा उसमें रहता है. एंड MT567 represent they indicate the status or change in status of a CA.
तो मतलब तुमने उसको दिया कि नहीं, कंफर्म किया कि नहीं, वो MT 5657 में समझता है। तब प्रोसेसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें यही देखना है, अगर पेमेंट प्रोसेसिंग टीम में हो तुम, तो फिर ये दोनों मैसेज कोड भी हम कभी कभार देखते हैं, बट ये एक्चुअली, हाँ, स्विफ्ट में होता है। अब ये चीज भी पेमेंट टीम को करने की जरूरत नहीं होती कई बार, ये अलग टीम होती है, अलग टीम अलग काम करती है। ये वो पूरा वोटिंग वगैरह देख के, पूरा डेटा देख के इवेंट सेटअप करके अपना इवेंट प्रोसेस कर देते हैं, फिर हम सिर्फ पेमेंट रिलीज करते हैं। अरे वेट 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 करो यार, है ना, हम है। हाँ, ठीक है। तो ये हुआ हमारा कैश डिविडेंड। CSO ये मैंडेटरी चॉइस के फैमिली में आते हैं, दे आर फ्रॉम द मैंडेटरी विद चॉइस कॉर्पोरेट एक्शन फैमिली, कैश डिविडेंड, ड्रीप एंड CSO। तो ये हमारा यहाँ पर मैंडेटरी खत्म हो रहा है। यहाँ पे सबके लिए डेट तो इक्वली रहते हैं, एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट, पेमेंट डेट, ये की डेट्स है, ये हमें पता होने चाहिए। ये अगर नहीं पता है तो इवेंट सेटअप नहीं होगा, प्रोसेस नहीं होगा, कई सारी ऐसी दिक्कतें आती है। तो ये हुआ। एंड क्वेश्चंस भी इसी में आते हैं, जैसे डिफरेंस पे ज़्यादा कंपैरेटिव क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। MT 565 और MT 567 के बीच भी क्वेश्चंस आ सकता है, तो उसके लिए भी आप रेडी रहो। ठीक है। तो अब हम जाएंगे टीम, मैंने जो कहा था कि आपको मैंडेटरी विद चॉइस ये प्रोसेसिंग के बाद हम जो इवेंट्स कवर करने वाले हैं, वो है कि जो टॉप के कुछ 5 इवेंट्स होने वाले हैं, वो कवर करने वाले हैं वॉलंटरी के लिए। एंड कुछ इवेंट्स, एक टॉप के 2 इवेंट्स होने वाले हैं जो हम कवर करने वाले हैं वॉलंटरी के लिए, मैंडेटरी एंड वॉलंटरी के लिए। उसके बाद मैं प्रोसेसेस सिखाऊंगा, प्रोसेसेस होगी, उसमें कई सारी प्रोसेसेस आती है, जैसे कि तुम्हें जो इजी प्रोसेस लगती है वो प्रोसेस तुम ले लेना। डेडलाइन है, एंटाइटलमेंट कैलकुलेशन है, पेमेंट स्ट्रक्चर है, ये इतनी इजी प्रोसेस करके दिए मैंने, देखो। पूरा मैंने एस्केलेशन भी कैसे कैसे करना है, किस टीम को करना है, वो चीज़ भी मैंने लिखी है, कहाँ कहाँ क्या क्या जा रहा है। ये आने वाले समय में मतलब तुम्हें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, तुमने ये तुम जहाँ पर भी प्रोसेस करते हो वहाँ पे भी ये कैरी कर सकती हो। कोई अगर समझा भी नहीं रहा है, कोई अगर तुम्हें बता नहीं रहा है, तो भी ये वहाँ पर भी तुम कैरी कर सकते हो।